حضرت اسی ٹاپک پہ بہت بڑا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جو کھانا سامنے رکھ کر عیسیٰ علیہ السلام پڑھ دیا جاتا ہے وہ کھانا کھانا ہمارے تمہارے لیے جائز نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. یہ کہتے ہیں طاہر بھائی نہیں مجھ سے کہا تھا اس چیز کے لیے. اب طاہر بھائی کا یہ ہوا دعویٰ. کیا ہوا دعویٰ؟ یہ ہوا کہ کوئی کھانا اگر اس پر کلام اللہ پڑھ لیا گیا یا کوئی ذکر پڑھ لیا گیا سامنے رکھ کر کے تو اب اس کا کھانا ناجائز ہے. یہ طاہر بھائی کہہ رہے ہیں. اب طاہر بھائی بتائیں گے بھائی کہاں سے انہوں نے اسلام میں یہ چیز پڑھی ہے یا کس عالم سے سنی ہے وہ بتا دیں. اور اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے ان سے سنی ہے تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتا دیں حضرت کہیں ایسا ہے. ابھی میں بتائیے. چاہوں گا آپ کی بات پہ. چلو ابھی حضرت بتا دی نا بات. بتا دیں. میں نے کہا شیخ نے جتنی باتیں بتائیں ٹھیک ہے نا صحیح بتائیں. اتفاق کر رہا ہے حضرت صحیح بتائیں. ہاں ٹھیک ہے. اتفاق کر رہا ہوں میں ان باتوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بتائیں. آپ نے حدیث پڑھی پہلے. حدیث پڑھ کے بتایا کہ 3 چیزوں کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس من شیء یقربکم الی الجنہ ویبعدکم من النار الا قد امرتکم بہ. دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتانا دی. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت میں لے جانے والی تھی اور میں نے تم کو بتانا دی. 3 چیزیں نبی نے بتا دی. آپ نے بتایا صدقہ جاریہ اور علم اور اولاد. 3 چیزیں بتائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. 3 چیزیں کہ مرنے کے بعد صرف 3 چیزوں کا جو اجر ملتا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب ہم جو کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں نبی نے بتائی میرے بھائی یہیں پر رک جاؤ. نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. اتنا کافی ہے. اگر تم آگے جو کام کرو گے اگر نبی نے کہہ دیا کہ میں نے تو تمہیں یہ بتایا ہی نہیں تھا جو تم لے کر آ رہے ہو تم کر کے آ رہے ہو یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں تھا میں نے تو سب چیزیں بتا دی تم کو جنت میں جانے والی. لیکن یہ تم کہاں سے لے کے آئے ہو جو تم نے نئے کام کیے ہیں یہ کام کہاں سے لے کے آئے ہو. اگر نبی نے اس دن یہ کہہ دیا تو پھر کیا ہوگا ان لوگوں کا. ٹھیک ہے نا. باقی جب 3 چیزیں بتائیں ان 3 چیزوں میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے جو مرنے کے بعد لوگوں کو فائدہ جس چیز سے پہنچتا ہے. صدقہ جاریہ اگر یہ ہیں اگر ان کے والد صاحب مر گئے ہیں یہ جو بھی کام اپنے والد صاحب کے لیے کریں گے اس کا اجر ملے گا. لیکن میں آ کے میں چاہوں کہ ان کے والد صاحب کو پارسل کر دوں تو یہ تو میری اپنی مرضی ہوگی. میرے نبی نے تو نہیں بتایا کہ ایسے پارسل کر دینا. ٹھیک ہے نا. اگر ایسے پارسل کرنے سے جنت میں چلے جاتے تو کوئی کروڑ پتی ارب پتی کوئی جنت سے محروم نہیں رہتا. سب جنت میں چلے جاتے. سب جنت میں چلے جاتے. ایک حافظ کو کھڑا کر دیتے کہ بیٹا ہم نے تم کو خرید لیا تم زندگی میں پڑھتے قرآن ہمارے باپ کو بخشتے رہو. وہ جنت میں چلے جاتے. سمجھ رہے ہیں. نبی نے جو 3 چیزیں بتائیں یہ ہمارے لیے کافی ہے. اگر ہم ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں دوسرا کام کرتے ہیں اور قیامت والے دن ہمارے نبی نے اگر ہم سے یہ کہہ دیا کہ تو یہ کیا کر کے لایا یہ تو میں نے بتایا ہی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا انتقال ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نہیں کیا تھا اور نہ یہ بتایا تھا. یہ تو ہم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها. یہ صرف نام ہی نام ہے جو گھڑ لیے ہیں انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے. ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. تو جو ہمارے نبی نے بتا دیا کیا ہمارے لیے کافی نہیں. نبی نے حجۃ الوداع میں بتایا حج کر رہے ہیں آپ اور وہ آپ کا پہلا و آخری حج تھا اور آپ نے کہا ایھا الناس اے دنیا کے انسانوں اے دنیا کے انسانوں انہ لا نبی بعدی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے ولا امت بعدکم اور تمہارے بعد اب کوئی امت بھی نہیں ہے. الا خبردار فاعبدوا ربکم تو تم اپنے رب کی ہی عبادت کرنا. وصلوا خمسکم 5 وقت کی نمازیں پڑھنا. وصوموا شہرکم 1 مہینے کے روزے رکھنا. وادوا زکات اموالکم اپنے مالوں میں سے زکات ادا کرنا. وتحجوا بیت ربکم اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا. واطیعوا اولاۃ امورکم اور اپنے مسلم حکمران کی باتوں کو ماننا. کہا اگر تم نے یہ 6 کام کر لیے تدخل الجنت ربکم تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ان 6 میں کوئی بھی یہ نہیں ہے جو بتائے بعد میں بتائے. تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 کام ہمارے نبی نے جو بتائے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے. اللہ کے بندو یہ ہمارے لیے کافی ہے. نبی سے آگے بڑھنے کی بات مت کرو. اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو. جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے. ہم اپنے نبی کی ہی سنتوں پر عمل کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم کو آگے بڑھا کے اپنی طرف سے کچھ گھڑنے کی کیا ضرورت ہے. ابھی آپ انہوں نے جو کہا آپ اس سے مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں. ان میں کوئی دخل اندازی ان نے کری ہے کوئی غلطی کری تو وہ ہمیں صاف واضح کریں. کیا نام ہے آپ کا؟ حنیف. حنیف بھائی نے بہت بڑھیا بات کی.
इन्होंने बताया रोजे के बारे में, इन्होंने बताया नमाज के बारे में, सब चीजें, ठीक है। ये मौजू हो गया अलग। ईसाले सवाब की बात से शुरू की थी बात आ गई नमाज रोजा हज ज़कात पे। ये बताइए नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में किसी को कोई इख्तलाफ है? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। बात ताहिर भाई ने शुरू की ईसाले सवाब से कि तीजा 40वां 10वां इनको भी बताओ। यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैंने हदीस पाक पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया जब इंसान इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है सारे काम रुक जाते हैं सिवाय 3 कामों के, कि उनका सवाब बराबर उसको पहुंचता रहता है। 3 के अलावा किसी का सवाब नहीं पहुंचता है। 3 बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, 3 बता दिए। अब वाजे होने 3 दो। जो बताए हैं वो 3 की कैटेगरी तो देखो कितनी शक्लें हैं उसकी। जैसे फरमाया नेक औलाद छोड़ गया। अब नेक औलाद छोड़ने का मतलब कि वो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। आप बताइए तीजे 40वें के अंदर कौन सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब नहीं करती है भाई? दुआ मग़फ़िरत का ही मतलब है या नहीं पहुंचाना चाहती है? आप बताओ। यानी औलाद नेक छोड़ गया जो इसाले सवाब करे, ये औलाद चाहती है, औलाद करती है, शामिल है। ऐसे ही फरमाया गया कि कोई इल्म छोड़ जाओ। इल्म छोड़ने का मतलब यह है कि या तो खुद किताबें लिख जाओ या किताबें खरीद के उम्मत के अपने मैयत के नाम पर क्या है उसको तकसीम कर दो कि लोग पढ़े। जैसे आप पारे बांटते हो, पारे बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बांटेगी तभी अजर मिलेगा। इतना ध्यान रखना। अब सुनो, मस्जिद के इमाम साहब जो पारे बांटते हैं, क्या लगता है आपको कि ये बांटना इनका गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। कहीं से आते ही होंगे। देखो ताहिर भाई की बात सही है, सही है। कहीं से आते होंगे, कोई ना कोई भी देते हैं, कोई भी देता है। अब देखो, अब हाँ वही तो मैं कह रहा ये हूँ। नबी ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये नबी ने कहा है। नबी ने हदीस नहीं पता। अच्छा रुको 1 मिनट। कौन लोग ऐसे हैं? ये नबी ने कहा है। अगर औलाद का मिलता है। अगर ये हो कि औलाद ही बांटेगी तभी उसके हक में मकबूल होगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। बल्कि हदीस पाक में ये है, सुनो, हदीस पाक में ये है मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसन। मन इसके अंदर उमूम है, ज़वील उक़ूल सारे आ गए। जिसने भी नेक काम की बुनियाद डाली उसको सवाब मिलना है। चाहे औलाद हो तो भी सवाब बाप की तरफ बाप को मिलेगा, या फिर चाचा हो तब भी। औलाद की कैद नहीं है उसमें ये है कि जो भी किसी के तरफ से कोई काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। ऐसे ही एक काम बताया भाई अरमान भाई, ऐसी एक काम बताया उन्होंने सदक़े जारिया। हदीस पाक में है, इन्होंने इत्तेफाक किया। सदक़े जारिया का मतलब कि काम होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। हुजूर से हदीस पाक से साबित, सरकार के सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से एक कुआं खोद दिया। सुन रहे हैं सब लोग? कुआं खोद दिया। जैसे ध्यान रखना, बेटे ने अपनी माँ के लिए खोदा है, इतना ध्यान रखना। ये नबी बता चुके हैं। अब सुनो, जैसे कि कोई आज के दौर में सरकारी नल लगा रहा है या कोई टैंक लगवा रहा है, फ्रिज लगवा रहा है मस्जिद में, ये सब उसी की अक़साम है, उसी की शक्लें हैं। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से उनके विसाल के बाद में कुआं खुदवा दिया और कहा कि सब लोग पानी पिएंगे, सवाब मिलेगा, और सबके बराबर सवाब मेरी माँ को मिलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया हाजा बिरुल उम्मे साद, ये उम्मे साद की माँ का कुआं है। यानी जितने लोग इससे सवाब हासिल करेंगे सबका सवाब उम्मे साद को पहुंचेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब किसके जरिए पहुंच रहा है? जो पिएंगे। तवज्जो आपकी। यानी खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब पहुंचाने में सारे शरीक। तो पता ये लगा कि सिर्फ औलाद से ही सवाब नहीं पहुंचेगा, औलाद एक जरिया बन सकती है। वो क्या करे, कुरान शरीफ बांट दे, लेकिन पढ़ेंगे सारे लोग मोहल्ले के, सवाब उन्हीं को पहुंचेगा। समझ? हाँ, मसला वही है ना। इन सारी चीजों से पता ये लगा, हजरत उम्मे साद के कुएं से पता ये लगा कि इसाले सवाब हक है और सवाब पहुंचाना सही है। औलाद पहुंचाएगी, सवाब पहुंचाना सही है। सदक़े जारिया करो, सवाब पहुंचाना सही है। ये मैंने हदीस से समझा दिया, बयान कर दिया। आप भी कह रहे हो हक है, तो लिहाजा आपके मुताबिक भी ये साबित हुआ। हाँ, ये बात आई ना। कौन आवाम है? ये इनके काम बैठो, पहले हाँ ठीक है, बैठो, मैन मुद्दे की बात है। पहले एक बात हो जाए, ये सारी बात समझ में आ गई सबके? हाँ आ गई। अभी तक कैमरा घुमा। इसाले सवाब करना हक है या नहीं है? हाँ है। आप लोग इंशाल्लाह 40वां करें, 10वां करें, 30वां करें,
अब सारी चीजें ये कह रहे हैं कि हदीस से साबित अब इस पर आ जाओ जरा। अब इसको अगर कोई गलत कहेगा तो वो दलील देगा, और गलत मैं जब तक बैठा हूँ ये साबित करें, बाद में नहीं कहेंगे गलत है, फिर कह रहा हूँ सही है। अगर जनाजा हो या फिर लेके जाते हो, अगर सलाम पढ़े तो वो ये वही चीज है जो नबी सही ने है, बताई, गलत है। इतना ध्यान रखना। इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा तो उन्हें सिखाने की बात है, दीन सिखाने की बात है, उनको कहाँ सिखाया जा रहा है? ये कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसे ही दिखा अरे आप लिख के चलो खामोश रहो। सामने 10 कैमरा चलने से बात खामोश हो जाए। यार ये तुमको दीन नहीं सिखाया जाएगा। अरे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो क्यों दीन की बातें करेंगे? ये सब क्या इन्होंने मुझे इजाजत दे दी लिखने के लिए, अब लास्ट में इसको साइन कर दी। हाँ ठीक है। अब खामोश हो जाओ, खामोश हो जाए, बात हो गई, बस हो गई। कितना सीख गए इतनी देर में दीन? ठीक है कुछ? अरे दीन तो बहुत सीखे हुए हैं, वैसे ही नमाज पढ़ रहे हैं और क्या? इतना सीखे हुए हैं, इंशाल्लाह गुमराह ना होंगे। अरे गलत लफ्ज कहना तो दीन सिखाए, ये आए हैं इतनी देर से सिखा रहे हैं, दीन सिखाए ना, दीन की बातें करें ना। रास्ते में ले जा रहे हैं। सोच के ही है। मैं तो ताजुब में अरे ताज्जुब में आपने अभी तक कुछ कुरान हदीस कुछ सीखा, यहाँ पे इतनी देर से बैठे हुए हैं, कुछ सिखाएंगे ये नहीं सिखाएंगे, यही आदमी को उलझाते रहेंगे कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। ये शफाअत मुस्तफा कुरान और हदीस नहीं है। शफाअत मुस्तफा का इनकार कौन कर रहा है? कोई करता है कोई? फिर ये क्या है? हाँ। ये आप अरे खामोश रहो हजरत। ये इन्होंने मुझसे लिखने के लिए कहा था और बाद में ये साइन करने के लिए इन्होंने भी कहा था। ठीक है। मैंने ये लिख दिया इनके मुताबिक। इन्होंने जैसे पहले लिखा था नबी की शफाअत से इत्तेफाक है, इन्होंने ये लिखा था। हमने ये कहा हमारा दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। इन्होंने कहा दोनों बातें एक हैं। उसके मुताबिक इन्होंने मुझे इख्तियार दिया कि मैं लिखूं, साइन ये करेंगे। मैंने ये लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। अब आप साइन कर दो। शफाअत साइन कर दो। अब ये पता है क्यों साइन करवाया जा रहा है? अरे भाई, मैं बताऊं? अब पहले देखें, अब कहीं किसी ने कोई वीडियो में कहीं कोई बात, किसी ने कहीं लिख मारी होगी, किसी संगठन ने कहीं, तो कहेंगे वो फलाने मौलाना ने तो ये लिखा है, अब उसको तुम काफिर कहो। फलाने मौलाना ने तो हमको काफिर कहा है, कहना पड़ेगा भाई। उसको काफिर कहो। तो भाई उसूल के मुताबिक भाई जो उसूल के मुताबिक है, अगर बुखारी शरीफ रुको जो हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, मन काल अली अखीही या काफिर फकद बाअ अहदुहुमा, जिसने किसी मुसलमान भाई को काफिर कहा तो अगर काफिर कहा और कुफ्र है उसमें तो सही कह दिया, और अगर काफिर नहीं है तो वो कुफ्र पलट के उसी के गले का हार बन जाएगा, तोक बन जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर शफाअत रसूल मानने वाला मुसलमान नहीं है फिर उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। आपके मुताबिक ये अगर सही है बात और है भी सही, आपने कहा, इस पर साइन कर दीजिए बस। आप दोनों मुत्तफिक हो रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। समझ रहे हैं बात? हाँ बिल्कुल सब समझ रहे हैं, आप ही नहीं समझ रहे। लिया करें। अभी बताइए, हजरत ने बात बताई, अब आप करिए, साइन करिए। हजरत ने बात पहले बताई। अरे गुफ्तगू सुन लो, गुफ्तगू सुन लो। पहले तो इन्होंने बताया कि जो शफाअत का इकरार करे, शफाअत का इकरार करे वो मुसलमान है, और जो उसको काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाएगा अगर वो काफिर नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, काफिर का माना होता है कुफ्र करना, यानी इनकार करना। किसी भी एक मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सूद ब्याज का कारोबार कर रहा है। काय का कारोबार कर रहा है? हाँ, वो अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा है, वो कुफ्र में है, क्योंकि वो आदमी शफाअत का इकरार करता है। लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाते ही, जैसा कि उससे डरने का हक है। और कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। बेशक। किसके लिए कहा था? ये बात किससे शुरू करी थी? अल्लाह ने
मुसलमान से शुरू करी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, जब तुम मरो तो मुसलमान ही मरना, अल्लाह कह रहा है। तो अल्लाह खुद ये बता रहा है कि अगर जिसने किसी ने किसी चीज का इनकार कर दिया और वो काम कर रहा है, हालांकि वो शफाअत का इकरार कर रहा है, लेकिन एक चीज वो कहता है कि भाई नमाज मैं नहीं पढ़ूंगा। आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, मुसलमान है वो, फिर भी मुसलमान है। बताओ बताओ मुसलमानों, अगर वो कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं हूं तो मुसलमान, तो वो काफिर हो गया नहीं हो गया? हालांकि शफाअत का इकरार कर रहा था, शफाअत का इकरार कर रहा था, लेकिन उसने एक चीज का इनकार कर दिया, कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई। ठीक, अब वो कुफ्र में पड़ गया नहीं पड़ गया? अब ऐसे आदमी को आप काफिर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो कुफ्र में है इस वक्त, और उससे समझा सकते हैं कि भैया आप जो है कुफ्र में जा रहे हैं, आप जो है हक से पलट रहे हैं, जो सही बात है उसको तुम झुटला रहे हो, तो ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। समझ रहे हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि अल्लाह का भी फरमान है। ठीक, लीजिए मैंने इस पे साइन कर दी। साइन में नाम भी लिख दो थोड़ा, हमने अपना नाम लिखा उर्दू में पूरा, वो रहना चाहिए ना साइन के साथ। बाद में किसी को क्या पता किसने साइन करे, तहरीर जाएगी ना। बाबू खान रिजवी, चलिए ठीक है ना? हिंदी में भी लिख दिया और उर्दू में भी लिखे दे रहा हूँ। तारीख को डाल दो। हाँ, नहीं ये सब उसूली चीजें हैं भाई ताहिर भाई, हम जानते हैं ना ये चीज कब बात हुई, कौन सी तारीख में हुई, सब चीजें जरूरी होती है, सबूत होता है। बाबू खान रिजवी, ठीक। चलिए ये मैंने तीनों जबानों में साइन भी कर दिए और लिख दिया। चलिए। अब और आगे लिखते हैं, चलिए ठीक। ये बिल्कुल सही चल रही है, बात नहीं चल रही है। सही बात है। सही चल रही है। बहुत ही आप कुछ अल्लाह के बंदो, इनसे कहो कुछ दीन सिखा दे। अरे ये भाई एक आदमी से बात हो रही है, सिखाया जा रहा है, एक आदमी से खाली बुझाया जा रहा है। अब सुनो आगे सुनो बाकी। अरे भाई अब ये बताइए, इन्होंने जैसा कि हाँ इन्होंने ना मजाक वाली बात है। अब सुनो एक मिनट, हाँ मैं खामोश रहो। एक सवाल है तो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो पूछ रहे हो। खटका तो इसी का ही है इसमें में। पीछे से आवाज आ रही है 3:40 का 10 में। वो सब होगा भी, पहले ये मुकम्मल हो जाए। बताते जाओ, भूल अभी जाएंगे। रुको एक मिनट, अब देखो, अब ये बताइए सब लोग खामोश हो जाओ भाई। हैं? अरे पहले वो बात हो जाने दो पूरी। आप लोग बोलो मत, देखो तवज्जो से, बेटा है खामोश हो जाओ। अभी इन्होंने शुरू गुफ्तगू में बताया था कि मैं मेरे बारे में कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं सऊदी काम करने गया, इनको ये लगता है, लेकिन मैं काम ही नहीं करने गया, बल्कि क्या क्या कहा कि करा इन्होंने वहाँ तबलीग का कोर्स किया, दावे का कोर्स किया, और क्या क्या था हजरत थोड़ा बता दें, वो सारी चीजें उन्होंने बता दी। वो टॉपिक ही नहीं है। सुनो सुनो, आप अपना इसका काम मतलब करें, ये है, आप अपना काम करें। इसका मतलब आप ये है, इनको समझाने अरे सुनो के लिए भाई, आए थे, वो तो बात ही खत्म हो गई, वो बात जहाँ सही चल रही है, टॉपिक था, वो भाई, टॉपिक बिल्कुल। उड़ गया, नतीजा निकल अब जा वो रहा है। बात ही नहीं है। अब सुनो, अब तो ये यहाँ पे खाली उलझाने वाली बातें चल रही है। अब ये बताइए, एक सवाल पर पहुंचे ना है। ये वहाँ सऊदी अरब में रह के आए, अब सऊदी अरब सब लोग मुतवज्जो हो जाओ, अरे इसमें सऊदी क्या अरब से है की ये बात है। किताब छपी है, किताब का नाम है रहनुमाए हज व उम्रा। वही है जो इनके बाप लेकर आए थे सबसे पहले। अब सुनो, और इस किताब को इनसे ज्यादा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे कैमरे हाथ में करीब ले आओ जरा, कैमरे भाई साहब इधर ले आओ, दिख रहा इधर ले है। आओ। ये देखें कहाँ से ये चली सब है, घुमा के यही अब लाया सुनो, जाएगा सुनो, तुमको, और इनके ये है पास है ही देखो। नहीं कुछ, ना ये- तुमको कुरान सिखाएंगे, ना तुमको अब सुनो। दीन सिखाएंगे, ये किताबें सिखाएंगे। इन्होंने शुरू में अभी लिख के भी दे दिया, इनके साइन मौजूद हैं, 3 जबानों में कह रहे हैं साइन किए हैं, और साइन ये किए इन्होंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, इसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। सही है? अब आइए इधर, ये किताब छपी है सऊदी अरब से, रहनुमाए हज व उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबवी। अब लिखने वाले कौन है? मुतअद्दिद उलमा इकराम, यानी पूरी एक टीम ने ये किताब लिखी है, इनके उलमा जो वहां पर हैं उनकी मेरे टीम ने। नहीं है, वो सुनो, तुम्हारे होंगे। अरे सुनो सुनो, हमारे तो अल्लाह रसूल है। अच्छा अल्लाह रसूल की तो ये बात आपके नहीं है, ये आपके नहीं है, रसूल की बात करते हैं। अरे ये आपके नहीं है, हमारा कोई नहीं है, ये नहीं हमारे सिर्फ आ रही। शेख बाप। अब सुनो, हाँ यही किताब है, सुनो, और सुनो, कुछ नहीं है इनके पास। शेख- तुम्हें कुछ नहीं सिखाएंगे। शेख अब से पहले इनके वालिद साहब अब आप- आए थे, वो अब भी आप ये किताब बताइए, लेकर आए थे, ये और किताब भी दुरुस्त नहीं है, लेकर जो आए। सऊदी मैंने से जवाब दे छपी। दिया था, वो है वीडियो में जवाब। अब नहीं तार भाई गलत बात मत करें आप, अभी आवाम नहीं उठेगी, ये आवाम नहीं उठेगी, आप गलत बात मत करो। ये किताब- अच्छा ये भी सुन लो, सुनो, ये भी सुन गलत बात मत करो। बैठे 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 इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस किताब के अंदर बैठे 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 सब लोग बैठे, सब लोग बैठे। इनकार कर रहे हैं कि हमारे उलमा की नहीं है तो बात भाई किसी की नहीं, हमें क्या लेना देना ये उससे? किताब सऊदी अरब से छपी है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सफा नंबर
नंबर 11 पर। हाँ हाँ ठीक एक मिनट है, भाई, ठीक है, सुन ले भाई, सुन ले। ये किताब सऊदी अरब से छपी है, जहाँ से ये तालीम हासिल करके आए। 11 सफा नंबर पर लिखा हुआ है, 11 पेज नंबर पर, इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। उसमें इस्लाम से खारिज करने वाली बातें जो लिखी है, उसमें दूसरी बात क्या है? लिखते हैं, जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारशी बनाया, उसे पुकारा और उससे शफाअत की दरख्वास्त की और उस पर भरोसा किया, वो बइजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने जो दावा ये लिखा, इन्होंने, एक मिनट रुको, इन्होंने, अभी आप बोलना, इन्होंने ये जो दावा लिखा, उसमें लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। और ये पूरी टीम इनके सऊदी की कह रही है, जहां से इन्होंने तालीम हासिल की, कि जो हुजूर की शफाअत को तलब करेगा, भरोसा करेगा, हुजूर को शफी मानेगा, वो काफिर है। अब बताइए, मुसलमान को काफिर कहने की बुनियाद पर, और हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, मन क़ाल लि अख़ीही या काफिरु फ़क़द बाअ अहदुहुमा, कि जिसने किसी मुसलमान को काफिर कहा, वो कुफ्र अगर उसमें नहीं था तो ये कुफ्र उसी के गले का हार बन जाएगा, तो अब ये खुद काफिर हो जाएगा। जब शफाअत मानने वाले मुसलमानों को काफिर कहने वाला इनकी तहरीर के मुताबिक भी खुद काफिर हो गया, तो पता लगा जो लोग काफिर बना रहे थे पूरी उम्मत को, 14 सदी से जो उम्मत शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी, उस उम्मत को वहां से काफिर बनाया जा रहा है, सऊदी से, रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबी किताब से। और उसके मुताबिक ये भी कह रहे हैं कि ये जो हुजूर की शफाअत को मानेगा वो मुसलमान, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर। लिहाजा इनके मुताबिक, शेख बाबू खां साहब के मुताबिक भी अब ये पूरी टीम जिन्होंने किताब लिखी है खुद काफिर हो गए। बेशक बेशक बिल्कुल बेशक हो गए। बेशक। अब ये अब सुन भी तो ले, नहीं सब अब उसका जवाब भी तो सुन ले। बताइए, जवाब बताइए। भाई ये बताओ, ये किताब मैंने लिखी, यहाँ मेरी बात चल रही है या ये किताब लिखने वालों की बात चल रही है? बताओ जरा सब लोग बताओ, ये बात मेरी चल रही है या उसकी? अब सुने नबी का फरमान, अब सुनो, नबी करीम सुने फरमान नबी का, जो तुमने नहीं सुना, सुने नबी का फरमान। अच्छा सुनो तो क्या कह रहे हैं। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसुब्बुल अम्वात, मुर्दों को बुरा मत कहो, जो मर चुका है। ये जितने जिनकी बातें ये कर रहे हैं, ये कोई भी जिंदा नहीं। कहा आप मुर्दों को बुरा मत कहें, फ़इन्न अल्लाह क़द अफ़दू इला मा क़द्दमू, क्योंकि वो अपने किए को पहुंच चुका है, वो अपने किए को पहुंच चुका है। अगर उसने गलती करी है तो वो जहन्नम में उसको सजा मिल रही है, नहीं मिल रही है? और जिसको एक बार सजा मिल जाती है उसको दोबारा सजा दी जाती है। आपने किसी को कत्ल कर दिया, आप 20 साल की जेल काट के आ गए, अब आपको पुलिस पकड़ेगी दोबारा? नहीं पकड़ी। बताओ लोगों, बताओ, पकड़ेगी पुलिस? पकड़ेगी पुलिस? भाई वो तो सजा काट रहे हैं ना, हाँ, अब ताले लग गए, वो सजा काट रहे हैं, उसको तो तुम उसको दोबारा सजा दे ही नहीं सकते। हाँ। चलो मौलाना साहब उठा, बात खत्म। यही दिन सिखाएंगे, यही दिन सिखाएंगे, आप खामोश हो, यही दिन सिखाएंगे। ऐसा है, वो बार बार इस चीज के लिए कह रहे हैं तो बात खत्म करो। ताहिर भाई कह रहे हैं खत्म करो। नबी ने कह दिया है जो मर चुका उसको सजा मिल रही है, उसको तुम सजा नहीं दे सकते अपनी जिंदगी। ये इस्तेमाल है। चलो यहाँ से बैठ दो। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। अब ये बताइए, इसके मुताबिक, अरे मौलाना शहादत साहब, हाँ बस 1 मिनट सुन लो, पर खत्म कर दे रहे हैं। सबकी जड़ों बैठो, यही रहोगे। अब सुन ले, अब सुन लो की बात, सुनो, देखो सुने, मैं बिल्कुल अखीर कर रहा हूँ बात। हाँ खत्म कर दो ये करके। ठीक है, अब आप देखिए, सुनो, दावा था कि शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मुताबिक ये मौजूद मुनाजरा था, शफाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दावा अहले सुन्नत ये हुआ, सुनो, दावा अहले सुन्नत ये हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से शफाअत फरमाएंगे, ये हुआ। इस पर इन्होंने कहा कि ये इत्तेफाक, बस 1 मिनट की ये खत्म हो रही है बस। इसके मुताबिक ये बात करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान और उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। इसके मुताबिक जो किताब ये लिखी गई, रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबी लिखने वाला खुद काफिर हो गए। अब सुनो, 1 मिनट भाई, 1 मिनट सुनो, सबको बताया कोई बात नहीं होगी। अब ये बताइए,
हजरत इनकी सुन लो एक मिनट जरा। कुछ लोग कह रहे हैं तीजा दसवां कुछ बताओ। वो बात होगी, सुनो यहाँ पर जो आफत आई थी के पीछे तो इख्तिलाफ नहीं है। उस पर भी बात होगी। एक मिनट हजरत, चलो एक आप इंतकाल हुआ था, घर है एक इंतकाल हुआ था जिसकी वजह से लोग मिट्टी में भी नहीं आए थे, लोगों का निकाह टूट गया था आने की वजह से। ठीक है, आप बेहतर है उस चीज पे पहले एक बार बात कर लें। हाँ, बहुत बढ़िया। चीजें सामने साफ साफ हो जाए तो ज्यादा है। चलो ठीक है, ये अकीदे की बात उन्होंने पहले इत्तेफाक किया, सारी चीजें तरतीब से चल रही है। लास्ट नतीजा ये है, उसके बाद में आप दूसरी बात कर लेना। लास्ट नतीजा आप सुन लीजिए, साइन के मुताबिक सारी बात हुई है, ये रिकॉर्ड भी हुई है वीडियो, आप लोग उससे इनकार नहीं कर सकते। अब मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, लास्ट 2 मिनट है, आप भी 2 मिनट बोल लेना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मौजूद मुनाजरा इन्होंने लिखा शफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके मुताबिक खत्म कर रहा है, ऐसे खत्म कर रहा है बस। कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से शफात फरमाएंगे। इन्होंने दावे अहले हदीस, इनका ये हुआ कि नबी की शफात से इत्तेफाक है, यानी दोनों दावे एक से हैं। फिर उसके बाद में दोनों की तरफ से एक बात लिखी गई, वो बात ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पर ईमान लाने वाला, अरे भाई अरमान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात पर ईमान लाने वाला मुसलमान है और उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। हमने किताब दिखाई, रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबवी, ये किताब सऊदी अरब से छपती है। इसमें लिखा गया जो हुजूर को शफात करने वाला माने वो काफिर, और ये इन्होंने कहा कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर। तो लिहाजा नतीजा ये निकला कि जिसने ये किताब लिख करके पूरी उम्मत को काफिर बनाया, वो सारे लोग अपने ही कौल के मुताबिक खुद काफिर हो गए। और ये बात मैं कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार ये बात कह रहे हैं। वो फरमा रहे हैं मन क़ाल ली अख़ीही या काफिर फ़क़द बाअ अहदुहुमा, कि जिसने अपने किसी भाई को काफिर कहा, अगर वो काफिर नहीं है तो ये खुद काफिर हो जाएगा। लिहाजा पूरी सऊदी अरब की वो टीम जिन्होंने लिखा है, इसके मुताबिक उम्मत को काफिर कहने के मुताबिक वो खुद काफिर है। यहाँ इंडिया की बात चल रही है, सऊदीया की बात चल रही है। आपके मुताबिक वो अकीदे के मुताबिक वो लोग काफिर है नहीं जो आपको काफिर कहें इस बुनियाद पर। तीजा दसवां की देखो ताहिर भाई, आप इसमें नहीं बोलोगे। जब ये बात सुनो जब ये बात तय हो गई तो उलमा बात करेंगे, तो आप उसमें अब हम दोनों करेंगे ना बात, हम दोनों बात आप ये पब्लिक भी तो कुछ मांग कर रही है। पब्लिक ने पब्लिक मांग रही है यार, बात का जवाब दे दीजिए कि वो सजा मिल रही है, खत्म करो। मतलब कोई जिंदा ही नहीं है जिसकी ये बात कर रहे हैं। अब रुको एक मिनट, ये आज सजा मिल रही है उन लोगों को जिन्होंने ये बात कही, सजा मिल रही है। बिल्कुल मिलेगी, तुम्हारा कहेगा तुम्हारे को मिलेगी, दूसरा कहेगा बस यही उसको बात मिलेगी, हमें कहलवा सबको मिलेगी। लिहाजा साबित हुआ कि शफाअत रसूल हक है, और जो उसको काफिर कहेगा मानने वाले को वो खुद काफिर है। अब इन्होंने कह दिया कि शफाअत रसूल पर ईमान लाने वाला मुसलमान, बिल्कुल उसको काफिर कहने वाला काफिर। लिहाजा सऊदी अरब की हुकूमत जिसने ये किताब छापी, इनके मुताबिक शेख बाबू खान के मुताबिक सब काफिर है। जाओ तुम कहो सबको काफिर मैं क्यों कहूँ, आप कहो। अगर औकात है तो जाके वहाँ जाके कह दो। ये आपके मुताबिक सऊदी अरब की बात चल रही है, मैंने लिखी है किताब, मैंने लिखी है किताब। अब आप बताइए। ये मैंने कहा कि भाई उसको सजा मिल रही है, 10 में 20 में पूछ रहा है। कोई गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, सजा मिल अगर रही है। आला हजरत ने कोई गलती करी है तो उनको सजा मिलेगी, अगर अशरफ अली थानवी ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, अगर अब्दुल वहाब ने सऊदी अरब के ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, गलती करिए तो आप भाई। ये कह दो, क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा उनके बारे आप ये में। कह दो ना कि ये किताब जो है वो हम उस पर अमल नहीं करते। कहो आप, मैं आपको बताऊं, आप कहिए ये बात। मैं आपको बताऊं, ये आपके जहाँ से आपने तालीम हासिल की वहाँ से छप रही है ये किताब, और फ्री बढ़ रही है सब में। तो आप कहिए, चलो अच्छा बात खत्म कर दो अब। आप कहिए दुनिया का जिक्र है वो आखिरत से नबी शिफात बताओ। चलो यार वो बातें करो, अब ये तो हो अब तो आपकी भी समझ में आ गया। एक मिनट सुनो, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी सुनो। तय हो गई देखो। एक मिनट, मेरा सवाल ये है, वो हमने आपको बुलाया, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं ये बात। तीजा दसवां ये चीज क्या है, ये क्लियर करके बताओ हमें। आप बताओ, ये नहीं बता रहे, आप बताओ। ये नहीं, हम इनसे नहीं सुनना चाह रहे, आपसे सुनना चाह रहे हैं। आप बताओ, आप बताओ। अब देखें आप, बिल्कुल इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्ज हैं, कुछ ऐसी हैं जो वाजिब हैं, कुछ ऐसी हैं सुनन है, कुछ ऐसी हैं मुस्तहब्बात हैं। फर्ज के छोड़ने पर आदमी गुनाहगार होता है, उसकी अदायगी उस पर जरूरी है। ऐसे ही सुन्नतें कुछ ऐसी हैं कि करना जरूरी है, और कुछ ऐसी हैं कि करें या ना करें। ऐसे ही बात आती है मुस्तहब की। मुस्तहब वो काम होता है कि करने पर सवाब है, न करने पर कोई गुनाह नहीं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये फातिहा
اور ایصال ثواب کا جو مسئلہ ہے، یہ امت میں چونکہ لوگ گناہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اب وہ جب دنیا سے چلے گئے تو اب وہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، دنیا سے جانے کے بعد آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، حج و زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ اب اگر کمی کر کے دنیا سے گیا ہے اور اس پر اس وجہ سے عذاب قبر کے اندر ہو رہا ہے، کون سی وہ چیز ہے کہ جو کرنے سے اس کے عذاب میں کمی ہو جائے، کہ اس کو عذاب میں تخفیف ہو جائے؟ تو حدیث پاک میں آیا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صحیح، جزاک اللہ خیر۔ کہ جب انسان مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، سارے اعمال اس سے رک جاتے ہیں، نماز روزہ حج و زکوٰۃ نہیں کر سکتا۔ اب کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جس کے مطابق وہ اگر مر گیا لیکن ثواب اس کو پہنچتا رہے؟ تو سرکار نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کو ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچے گا، اور جب ثواب پہنچے گا تو اس کی ضد جو عذاب ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس میں کمی ہو جائے گی۔ تو اب کون سی وہ چیزیں ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ایک تو وہ کہ جو نیک اولاد چھوڑ جائے اور نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، یہاں یہ قرآن شریف پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا، یہ ایصال ثواب قبر میں پہنچے گا اور اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا کہ علم او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے کہ لوگ علم سے فائدہ حاصل کریں اور پڑھنے پر ان کو بھی ثواب ملے اور اس کو بھی ثواب ملے جو علم چھوڑ کر کے گیا ہے۔ تیسری چیز سرکار نے ارشاد فرمائی او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی نل گڑوا گیا کہ لوگ جب تک پانی پیئیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور برابر کا اس کو ثواب ملے گا جو یہ کام کر کے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها الی یوم القیامہ، کہ جو کوئی بھی اسلام میں اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل کریں گے، اور سب کے برابر اکٹھا ہو کر کے ثواب اس کو ملتا ہے جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اب صدقہ جاریہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا، اکٹھا ہو کے اس کو کریڈٹ پہنچے گا جو قبر میں بندہ موجود ہے جو کر کے گیا تھا، یعنی اس کو ثواب ملے گا اور عذاب میں کمی ہوگی۔ یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی۔ اب سنیے، صحیح، یہ جب ہو گیا ایصال ثواب، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایصال کا مطلب آتا ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ثواب۔ ایصال ثواب ہوا ثواب پہنچانا، کس کو؟ میت کو۔ اب یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب ایصال ثواب کی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تو ایصال ثواب ہوتا ہے نماز جنازہ کی شکل میں، اس کے لیے دعا ہونا، دعائیں مغفرت ہونا۔ کبھی ایصال ثواب ہوتا ہے مثلا تیجا رکھ لیا یا سوم کی فاتحہ رکھ لی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ پر گناہ نہیں، 10واں، سب لوگ 30واں، کسی پر کوئی گناہ نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ 40واں، اگر نہ کرے کوئی تو کسی پر نہ کرنے کی بنا پر گناہ نہیں اور کرنے کی بنا پر ثواب، اور یہی ہمارا میت کے جانے کے بعد مقصود۔ تو لہٰذا سنی جو کام کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا وہ تو یہاں سے چلا گیا ہمارے درمیان سے، اب پہنچنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے قبر میں؟ تو وہ ہمارے لیے وہاں سے ایصال فیض کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہے، صالح ہے، وہ ہے تو وہ وہاں سے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے پروردگار میرے جو باقی لوگ رہ گئے ہیں میرے گھر والے، ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ رہیں، یعنی ایمان کی حالت میں ہی ان کو بلا لینا جیسا کہ میں آیا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے وہاں سے کیا ایصال دعا، کیا کی؟ ایصال دعا۔ اور اب وہاں سے جب انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑھیا کام کیا، یہ ان کا ہوا ہم پر احسان، اور قرآن پاک فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جب انہوں نے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہاں سے قبر سے احسان کر دیا تو اب ہمارے زندوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے احسان کریں۔ وہ احسان یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں سے ایصال ثواب کریں۔ وہ ایصال دعا کر رہے ہیں، ہم یہاں سے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہیں آپ کرنے کی وجہ سے۔ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، برسی اگر آپ نہ بھی کریں تو گناہگار نہیں، اور کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہے، میت کا بہت فائدہ، خود آپ کا بھی ذکر کرنے کی وجہ سے فائدہ۔ تو لہٰذا یہ مستحب کام ہے اور یہ ہمارے لیے محل نظر نہیں۔ ہمارے اہل سنت میں اگر کوئی یہ کام نہیں کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ہم کہ یہ سنی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ میت کا اس میں فائدہ ہے، آپ یہ کرو۔ یہ ایسا کام ہے کہ نہ کرنے میں تو گناہ نہیں، لیکن کرنے میں بہت ثواب ہے، کرنے میں بہت ثواب ہے، لہٰذا آپ سب کو کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ہم نے 10,000 روپے خرچ کر دیے جی، اور وہ 10,000 اس کام میں نہیں، کہیں کسی غریب کو دے دیے، شادی میں دے دیے کسی غریب کے، یا کہیں
मदरसे में दे दिए, मस्जिद में दे दिए, हमारा दिल कह रहा है नहीं करेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए पीछे क्यों पड़ते हैं लोग? अब सुनिए, जो ये कहे कि नहीं 40वां ही करके ही साले सवाब होगा, आप मस्जिद में नहीं दे सकते, तो ये किसी हदीस में ऐसा नहीं, किसी अइम्मा-ए किराम की किताबों में ऐसा नहीं, ये किसी पर नहीं थोपा जाएगा कि नहीं आपको 40वें के नाम से ये करना। सुने बात, सुने 40वें का मतलब क्या होता है? 40वें का मतलब होता है, ताहिर भाई अपनी बात कह के उधर ना जाए, और मैं भी थोड़ा सा बोलना अभी बोलना, बात मुकम्मल होने दो, आप बोलना। 40वें का मतलब बता रहे हैं 100% सही। 40वें का मतलब क्या होता है? 100% सही बात होता है। सुन लो, आपकी तस्दीक की जरूरत हाँ, नहीं। सही। हमारा आपका बुनियादी इख्तिलाफ है तो है, आप ये नहीं कि ये बातें करके आप जो है इनसे घुसना चाहोगे, दिखाओगे मैं भी आपकी तरह हूँ। अभी बहुत चीजें बाकी हैं हजरत, और ये कह के आपने पूरी सऊदी अरब को जो है मुस्लिम करार दे दिया, ये बातें लिख करके, ये तो बाद में होगी बात। अभी आपके ऊपर सोशल मीडिया पे लोग क्या कहेंगे आपसे, वो अलग चीज है। मैं ये आपसे कह रहा हूँ 40वें का मतलब होता है कि मैयत को गए हुए 40 दिन मुकम्मल हो गए होते हैं। लोगों ने ये तरीका बनाया हुआ है कि कोई ऐसा दिन मुतय्यन कर लिया जाए कि जिसमें सारे लोगों को बता दिया जाए कि अब वो फातिहा का दिन आ गया जहां पर इज्तिमाई तौर पर आप जिक्र करेंगे, इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करेंगे, ऐसा अल्लाह और रसूल का जिक्र करेंगे कि इकट्ठा होकर के, हो सकता है कि अगर अकेला अकेला हर आदमी करता गुनाहगार होता, नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती वो बात, लेकिन जब जमात की शक्ल में होगी तो जमात में कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो दुआ करेगा तो हो सकता है उसकी दुआ से सारे लोगों की दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए ऐसा दिन मुकर्रर किया जाता है 40वें के नाम पर कि 40 दिन हो गए, अब सब लोग आ जाएं रिश्तेदारी में से, और वो मैयत जो 40 दिन पहले दुनिया से गई है उसके लिए इकट्ठा होकर के हम सवाब भेज सकें, तो इसको कहते हैं 40वां। अगर कोई इकट्ठे ना होकर के, कोई किसी वजह से अपने घर से नहीं आ पाया, अपने अपने घर रह गए, लॉकडाउन लग गया, या फिर जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने अपने घर से बारिश हो गई, सबने फातिहा पढ़ ली, इकट्ठा नहीं भी हो तब भी सवाब पहुंचेगा। और अगर दावत के तौर पर कोई किसी को कह रहा है कि भाई दावत करो, 40वें की दावत है, आइए, शरर इसकी कोई इजाजत नहीं है कि आपको दावत बाकायदा की जाए कि भाई जैसे शादी की दावत होती है 40 में खाना खाने आना आपको, ये दावत इस्लाम में जायज नहीं है। आप गुरबा और फुकरा और मसाकिन को खिलाइए, और वो मेहमान जो दूर से आए हुए आपके मेहमान हैं आप उनको खिलाइए। एक चीज और बात से करते हैं, ये तरीका है, इसके मुताबिक आप अपना काम कीजिए। एक सवाल ऐसा काम है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपको भी सवाब मिलता है और उस मैयत को भी सवाब मिलता है, लिहाजा हर सूरत ईसाले सवाब करना जायज है। और उसकी शक्ल तीजा, 40वां, सोम, बरसी, ये सारी चीजें हैं और इसमें आप करें बिला कबाहत। एक सवाल हजरत इस टॉपिक में बहुत बड़ा है, ये कहते हैं कि जो खाना सामने रख कर ईसाले सवाब पढ़ दिया जाता है वो तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये एतराज है। ये कहते हैं ताहिर भाई ने मुझसे कहा था इस चीज के लिए। अब ताहिर भाई का ये हुआ दावा, क्या हुआ दावा? ये हुआ कि कोई खाना अगर उस पर कलामुल्लाह पढ़ लिया गया या कोई जिक्र पढ़ लिया गया सामने रख करके, तो अब उसका खाना नाजायज है, ये ताहिर भाई कह रहे हैं। अब ताहिर भाई बताएंगे भाई कहाँ से इन्होंने इस्लाम में ये चीज पढ़ी है या किस आलिम से सुनी है वो बता दें, और अगर आपने नहीं पढ़ी है इनसे सुनी है तो ये बैठे हुए ये बता दें हजरत कहीं ऐसा है। अभी मैं बताना चाहूंगा आपकी बात पे, सुने अभी बता दी ना बात, बता दें। मैंने कहा जितनी बातें बताई ठीक है ना, सही बताई, इत्तेफाक कर रहा है हजरत, सही बताइए। ठीक हाँ ठीक है, इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं उन बातों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बताई। आपने हदीस पढ़ी, पहले हदीस पढ़ के बताया कि 3 चीजों का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना दी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना दी। 3 चीजें नबी ने बता दी। आपने बताया सदका जारिया और इल्म और औलाद, 3 चीजें बताई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। 3 चीजें कि मरने के बाद सिर्फ 3 चीजों का जो अजर मिलता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब हम जो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये 3 चीजें नबी ने बताई, मेरे भाई यहीं पर रुक जाओ, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इतना काफी है। अगर तुम आगे जो काम करोगे, अगर नबी ने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें ये बताया ही नहीं था जो तुम लेकर आ रहे हो, तुम करके आ रहे हो, ये तो मैंने बताया ही नहीं था, मैंने तो सब चीजें बता दी तुमको जन्नत में जाने वाली, लेकिन ये तुम कहां से लेकर आए हो जो तुमने नए काम किए हैं, ये काम कहां से लेकर आए हो? अगर नबी ने उस दिन ये कह दिया तो फिर क्या होगा इन लोगों का, ठीक है ना। बाकी जब 3 चीजें बताई, इन 3 चीजों में वो सब कुछ आ जाता है जो मरने के बाद लोगों को फायदा जिस चीज से पहुंचता है। सदका जारिया अगर ये है,
اگر ان کے والد صاحب مر گئے ہیں، یہ جو بھی کام اپنے والد صاحب کے لیے کریں گے اس کا اجر ملے گا، لیکن میں چاہوں کہ ان کے والد صاحب کو پارسل کر دوں تو یہ تو میری اپنی مرضی ہوگی، میرے نبی نے تو نہیں بتایا کہ ایسے پارسل کر دینا، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسے پارسل کرنے سے جنت میں چلے جاتے تو کوئی کروڑ پتی ارب پتی کوئی جنت سے محروم نہیں رہتا، سب جنت میں چلے جاتے، ایک حافظ کو کھڑا کر دیتے کہ بیٹا ہم نے تم کو خرید لیا، تم زندگی میں پڑھتے قرآن، ہمارے باپ کو بخشتے رہو، وہ جنت میں چلے جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی نے جو 3 چیزیں بتائیں یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر ہم ان 3 چیزوں کے علاوہ کہیں دوسرا کام کرتے ہیں اور قیامت والے دن ہمارے نبی نے اگر ہم سے یہ کہہ دیا کہ تو یہ کیا کر کے لایا، یہ تو میں نے بتایا ہی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کچھ نہیں کیا تھا اور نہ یہ بتایا تھا، یہ تو ہم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں بتایا کہ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ صرف نام ہی نام ہے جو گھڑ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو جو ہمارے نبی نے بتا دیا کیا ہمارے لیے یہ کافی نہیں؟ نبی نے حجۃ الوداع میں بتایا، حج کر رہے ہیں آپ، اور وہ آپ کا پہلا و آخری حج تھا، اور آپ نے کہا ایھا الناس، اے دنیا کے انسانوں، انہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور تمہارے بعد اب کوئی امت بھی نہیں ہے، الا خبردار، فاعبدوا ربکم، تو تم اپنے رب کی ہی عبادت کرنا، وصلوا خمسکم، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، وصوموا شہرکم، 1 مہینے کے روزے رکھنا، وادوا زکات اموالکم، اپنے مالوں میں سے زکات ادا کرنا، وتحجوا بیت ربکم، اور اپنے رب کے گھر کا حج کرنا، واطیعوا ولاۃ امورکم، اور اپنے مسلم حکمران کی باتوں کو ماننا۔ کہا اگر تم نے یہ 6 کام کر لیے تدخل الجنت ربکم، تو تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان 6 میں کوئی بھی یہ نہیں ہے جو بتائے بعد میں بتائے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 6 کام ہمارے نبی نے جو بتائے یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے بندو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ نبی سے آگے بڑھنے کی بات مت کرو، اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، جتنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ ہماری زندگی کے لیے کافی ہے، ہم اپنے نبی کی ہی سنتوں پر عمل کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی ہے، ہم کو آگے بڑھا کے اپنی طرف سے کچھ گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی انہوں نے جو کہا آپ اس سے مطمئن ہیں تو ہم بھی مطمئن ہیں، ان میں کوئی دخل اندازی ان نے کری ہے، وہ غلطی کری تو وہ ہمیں صاف واضح کریں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ حنیف۔ حنیف بھائی نے بہت بڑھیا بات کی، انہوں نے بتایا روزے کے بارے میں، انہوں نے بتایا نماز کے بارے میں، سب چیزیں، ٹھیک ہے، یہ موضوع ہو گیا الگ۔ ایصال ثواب کی بات سے شروع کی تھی بات آ گئی نماز روزہ حج و زکات پہ۔ یہ بتائیے نماز روزہ حج و زکات کے بارے میں کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بات طاہر بھائی نے شروع کی ایصال ثواب سے کہ 30 40 10 ان کو بھی بتاؤ، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ میں نے حدیث پاک پڑھی کہ حضور نے فرمایا جب انسان اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے سارے کام رک جاتے ہیں سوائے 3 کاموں کے کہ ان کا ثواب برابر اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ 3 کے علاوہ کسی کا ثواب نہیں پہنچتا، 3 بتا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سنو، 3 بتا دیے، اب واضح ہونے 3 دو۔ جو بتائے ہیں وہ 3 کی کیٹیگری تو دیکھو کتنی شکلیں ہیں اس کی۔ جیسے فرمایا نیک اولاد چھوڑ گیا، اب نیک اولاد چھوڑنے کا مطلب کہ وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ بتائیے 30 40 کے اندر کون سی ایسی اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی ہے؟ وہی دعائیں مغفرت کا ہی مطلب ہے، یا نہیں پہنچانا چاہتی ہے؟ آپ بتاؤ، یعنی اولاد نیک چھوڑ گیا جو ایصال ثواب کرے، یہ اولاد چاہتی ہے، اولاد کرتی ہے، شامل ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ کوئی علم چھوڑ جاؤ، علم چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو خود کتابیں لکھ جاؤ یا کتابیں خرید کے امت کے اپنے میت کے نام پر کیا ہے اس کو تقسیم کر دو کہ لوگ پڑھیں۔ جیسے آپ پارے بانٹتے ہو، پارے بانٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اولاد بانٹ بانٹے دی گی تبھی اجر ملے گا، یہ طرح دھیان رکھنا۔ اب سنو، مسجد کے امام صاحب جو پارے بانٹتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بانٹنا ان کا غلط ہے؟ نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، کوئی اگر کہیں سے آتے ہی ہوں گے، آتے ہی ہوں گے، دیکھو طاہر بھائی کی بات صحیح ہے، کہیں سے آتے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بھی دیتے ہیں، کوئی بھی دیتا ہے۔ اب دیکھو، اب ہاں وہی تو میں کہہ رہا یہ ہوں، نبی نے کہا، میں نے نہیں کہا، نبی نے کہا ہے، نبی نے حدیث نہیں پتا۔ اچھا رکو 1 منٹ، کون لوگ ایسے ہیں؟ یہ نبی نے کہا ہے، اگر اولاد کا ملتا ہے۔ اگر یہ ہو کہ اولاد ہی بانٹے گی تبھی اس کے حق میں مقبول ہوگا، یہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ کہیں ایسا نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ ہے، سنو، حدیث پاک میں یہ ہے من سن فی الاسلام سنت الحسنہ، من اس کے اندر عموم ہے، ذوی العقول سارے آ گئے، جس نے بھی نیک کام کی بنیاد ڈالی اس کو ثواب ملنا ہے،
चाहे औलाद हो तो भी सवाब बाप को मिलेगा, या फिर चाचा हो तब भी। औलाद की कैद नहीं है उसमें ये है कि जो भी किसी के तरफ से कोई काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। ऐसे ही एक काम बताया सदका जारिया, भाई अरमान भाई, ऐसे एक काम बताया उन्होंने सदका जारिया, हदीस पाक में है, इन्होंने इत्तेफाक किया। सदका जारिया का मतलब कि काम होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। हुजूर से हदीस पाक से साबित, सरकार के सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से एक कुआं खोद दिया। सुन रहे हैं सब लोग? कुआं खोद दिया। जैसे ध्यान रखना, बेटे ने अपनी माँ के लिए खोदा है, इतना ध्यान रखना, ये नबी बता चुके हैं। अब सुनो, जैसे कि कोई आज के दौर में सरकारी नल लगा रहा है, या कोई टैंक लगवा रहा है, फ्रिज लगवा रहा है मस्जिद में, ये सब उसी की अक़साम है, उसी की शक्लें हैं। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से उनके विसाल के बाद में कुआं खुदवा दिया और कहा कि सब लोग पानी पिएंगे, सवाब मिलेगा, और सबके बराबर सवाब मेरी माँ को मिलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाजा बि'रुल उम्मे साद, ये उम्मे साद की माँ का कुआं है, यानी जितने लोग इससे सवाब हासिल करेंगे सबका सवाब उम्मे साद को पहुंचेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब किसके जरिए पहुंच रहा है? जो पिएंगे। तवज्जो आपकी, यानी खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब पहुंचाने में सारे शरीक। तो पता ये लगा कि सिर्फ औलाद से ही सवाब नहीं पहुंचेगा, औलाद एक जरिया बन सकती है। वो क्या करे, कुरान शरीफ बांट दे, लेकिन पढ़ेंगे सारे लोग मोहल्ले के, सवाब उन्हीं को पहुंचेगा। समझ रहे? हाँ, मसला वही है ना। इन सारी चीजों से पता ये लगा, हजरत उम्मे साद के कुएं से पता ये लगा कि इसाले सवाब हक है और सवाब पहुंचाना सही है। औलाद पहुंचाएगी, सवाब पहुंचाना सही है। सदका जारिया करो, सवाब पहुंचाना सही है। ये मैंने हदीस से समझा दिया, बयान कर दिया, आप भी कह रहे हो हक है, तो लिहाजा आपके मुताबिक भी ये साबित हुआ। हमें तो वही लग रहा है, सामने बैठे हुए याद करके हम कुछ ना आए, रात भर आप भाई घर खाम नहीं या खाम नहीं खाना। हाँ, ये बात आई ना, खत्म हो गई। भाई घर खाना खाम नहीं या ना खाम, कौन खाना ना खाना चाहिए, आवाम है उनके और सब है, ये इनके काम बैठो पहले। हाँ ठीक है, बैठो, मेन मुद्दे की बात है। पहले एक बात हो जाए, ये सारी बात समझ में आ गई सबके? हाँ आ गई। अब इधर कैमरा घुमा, इसाले सवाब करना हक है या नहीं है? हाँ है। आप लोग इंशाल्लाह 40वां करें, 10वां करें, 3जा करें। अब सारी चीजें ये कह रहे हैं कि हदीस से साबित। अब इस पर आ जाओ जरा। अब इसको अगर कोई गलत कहेगा तो वो दलील देगा, और गलत मैं जब तक बैठा हूँ ये साबित करें, बाद में नहीं कहेंगे गलत है। फिर कह रहा हूँ सही है। अगर जनाजा हो या फिर लेके जाते हो, अगर सलाम पढ़े तो वो ये वही चीज है जो नबी सही है, बताई, गलत है। इतना ध्यान रखना। इसमें कोई हरज नहीं है। अच्छा, तो उन्हें तो गलत है कहना, बिदती कहना उसको गलत है। गलत है। बिदती का मतलब ये बिदती है, हसना कहो उसको। बिदती का मतलब ये है कहो कि बिदती उसने का वो मतलब काम किया कि जो हुजूर ने नहीं किया था, और इस्लाम से टकरा रहा है, इस्लाम से टकरा रहा है। अब ये बताइए, हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ना, अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये सुनने के बाद वाजिब हो जाता है, आप पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना करीमना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम इन्होंने ही पढ़ा, आपने देखा, ठीक है, पढ़ लेंगे। अब इसका मतलब पढ़ने के बाद अगर कहें कि पढ़ना सही नहीं है, तो इसका मतलब कौल में और अमल में तजाद है, टकराव है। इसलिए जो करो वो कहो, जो कहो वो करो। वो हदीस जो पढ़ी थी, मेरे उम्मती वो बात कहेंगे जो बात नहीं सुन रहे हो आप सवाल कायम करके सुनते क्यों नहीं है भाई? आप सुनिए, इन्होंने हदीस पढ़ी थी कि उम्मती वो काम करेंगे जो नहीं कहते हैं, और वो करेंगे जो नहीं कहते हैं, यानी के खिलाफ करेंगे उसका, ठीक है। हालांकि ये वो काम कर रहे हैं जो ये नहीं कहते हैं, मना करते हैं सलाम से। अब हालांकि आप जब सबके सामने पढ़ रहे हो तो अकेले में आप एतराज भी मत किया करें। अब देखें कुरान पाक में अल्लाह पाक का जवाब दूंगा मैं, बेशक अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह और उसके फरिश्ते अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। यह है आयत करीमा का मफहूम। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह भी अपने हबीब पर भेज रहा है दुरूद, तो और फरिश्ते भी सारे भेज रहे हैं। तो ए ईमान वालों, तुम भी भेजो। जैसे कहा नमाज अदा करो, हुक्म है, तरगीब है, ऐसे ही फरमाया तुम भी दुरूद और सलाम भेजो। अब भेजो कब, ये नहीं फरमाया। क्या मतलब हुआ इसका? भेजो, चाहे
चाहे खड़े हो तब भी भेजो, चाहे बैठे हो तब भी भेजो। अब अगर कोई बैठ के सलाम पढ़ रहा है हजरत तो भी सही है, और खड़े होकर हाथ बांध के सलाम पढ़ रहा है तो भी सही है, चलते हुए पढ़ रहा है तो भी सही है, बैठ के पढ़ रहा है तो भी सही है, नमाज जनाजा के पीछे पढ़ के जा रहा है तो भी सही है, नमाज जनाजा के बाद 40वें में पढ़ रहा है तो भी सही है। क्योंकि कुरान फरमा रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है दुरूदो सलाम भेजो, यानी जितनी कसरत से भेजो, और जितनी कसरत से भेजोगे उतना ही। अब हुजूर को इसका फायदा ये नहीं है कि हुजूर की मंजिलत ज्यादा हो जाएगी, बल्कि इसके बदले में क्या होगा कि इन्हीं का ही क्या फरमाया, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद भेजा तो क्या है उसका नतीजा कि अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाता है। यानी भेज रहे हैं हम हुजूर पर, तो हुजूर के दर्जात बुलंद नहीं हुए, क्योंकि उनका तो मामला यह है कि हर आने वाली घड़ी अल्लाह पाक उनको बुलंद फरमा रहा है। तो एक मिनट, हमारे दुरूद भेजने से हुजूर पर हुजूर का फायदा नहीं है, हुजूर तो अल्लाह की बारगाह के मुकर्रर। अरे जनाजे के पीछे सलाम की बात चल रही है, हमारा खुद का फायदा है कि अल्लाह ने फरमाया कि तुम अगर मेरे हबीब पर दुरूद भेजोगे तो तुम्हारे दर्जात बुलंद किए जाएंगे। तो पता लगा ये ऐसा काम है कि जिससे दर्जात बुलंद होंगे। अब पीछे औलाद चल रही है, जब नमाज जनाजा के पीछे औलाद चल रही है, वालिद दादा चाचा चल रहे हैं, वो भी सलाम भेज रहे हैं, ये मैयत अब दुरूद सलाम नहीं भेज सकती, क्योंकि अब इसकी जबान और मुंह बंद हो गया। अब ये पीछे वाले जो हैं ये नियत करके भेज रहे हैं कि पढ़ हम रहे हैं लेकिन सवाब इसको पहुंचे। तो अब पता ये लगा कि परवरदिगार अब ये काम नहीं कर सकता अपने बुलंदी दर्जात का, लेकिन हम इसकी तरफ से भेज रहे हैं, लिहाजा इसके गुनाहों को माफ फरमा के इसके दर्जात को बुलंद फरमाते हैं। जनाजे की नमाज में एक मिनट रुको, एक मिनट, इस बात से आप लोग सबकी समझ में आ गई? हाँ जी, बात समझ में आ गई। एक सवाल मुझे नहीं आई, एतराज। हाँ, हजरत का एतराज सुनो। ठीक, अब एतराज क्या है इस पर, वो एतराज हमारा सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अहदसा फी अमरिना हादा मा लैसा मिनहु फहुवा रद्द। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमारे इस लाए हुए दीन में, मन अहदसा फी अमरिना हादा, हमारे इस लाए हुए दीन में किसी ने कोई ऐसी बात बढ़ाई जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, फहुवा रद्द, तो उसको रद्द कर दिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक, नबी ने कहा। दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कि जिस किसी ने दीन में ऐसा काम किया जिसका हमने हुक्म नहीं दिया है, वो काम दीन में उसने कर लिया, फहुवा रद्द, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। हमारा एतराज हजरत जी ये है कि नबी करीम, हमारे नबी ने हमको दीन सिखा दिया, पूरा दीन हम तक पहुंचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया, दुरूद भेजोगे अजर मिलेगा उसका, सलाम भेजोगे उसका अजर मिलेगा। लेकिन एक चीज अगर आप राइज कर लेंगे तो वो तुमने नबी के दीन में सेंध लगा दिया, और तुमने नबी का दीन तुम्हारे लिए काफी नहीं रहा, तुमने एक एक्स्ट्रा बात बढ़ा दी नबी उसमें। जनाजे के ले जाने के टाइम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं जानते थे कि सलाम पढ़ना अच्छी बात है, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन हुसैन, ये जितने हैं नीचे आगे आके किसी वो कोई नहीं जानता था। आज हमको पता चला कि हम भाई सलाम पढ़ेंगे तो ज्यादा अजर मिलेगा, इसका अजर मिलेगा। अजर तो मिलेगा अलग, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि तूने वो काम किया है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, और नबी ने तुमसे मुंह फेर लिया, तो उस वक्त तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। नबी ने उसका हुक्म नहीं दिया, तुमने एक राइज किया, आज तुमने सिर्फ सलाम पढ़ना शुरू किया, दूसरा ढोलक बजा के सलाम पढ़ना शुरू करेगा, तीसरा डीजे बजा के सलाम पढ़ना शुरू करेगा, और एक ये नया दीन राइज हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के 1400 साल पहले सिखा दिया, हमारे लिए वही काफी है। हमको एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है, अपनी तरफ से बढ़ाने की क्या जरूरत है? अगर हमने अपनी तरफ से बढ़ाया किसी काम को, और कयामत वाले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तू तो वो चीज लेकर आया है, तू तो वो शख्स है जिसने कि तूने मेरे दीन को ही बदल दिया, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना नबी ने बता दिया उतना जनाजे की को लेके जाओ, और खामोशी से, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया, इसे लेके चले जाओ। दुरूद शरीफ तुम सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। नबी ने दूसरी बात यह है कि नबी ने हमको हर चीज बता दी। नबी ने कह दिया मैंने तुमको सब चीज बता दी। अब ये सवाल एक और पैदा हो जाएगा कि नबी ने हमको ये इतनी अच्छी चीज थी, ये नहीं बताया हमारे नबी ने कि सलाम भी पढ़ते जाना, ठीक है ना, ये नहीं बताया, ये बहुत बड़ा एतराज हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा बता दिया वैसा ही कर लो, ये हमारे लिए काफी है। हमारे नबी ने बताया तुम जिस वक्त चाहो, जब चाहो दुरूद सलाम नबी पर भेज सकते हो, लेकिन अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज मत राइज करो कि चाहो भी सब लोग मिलकर ऐसा काम करो। नबी ने हमको बता दिया कहीं भी दुरूद पढ़ो, और नबी ने
ہم کو اگر وہ ہم درود یہاں کے بجائے جا کے ہم ایسی جگہ پہ پڑھنے لگے جہاں ہمارے نبی نے نہیں پڑھا، جہاں ہمارے نبی نے نہیں بتایا، تو وہ ہمارا رائج کرنا ہم کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے جتنا ہمارے نبی نے دین سکھایا الحمدللہ وہ کافی ہے. ہم اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور جو آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا اللہ وحدہ لا شریک نے بتا دیا قرآن کریم میں، کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جس نے ہدایت آ جانے کے بعد نبی کی بات کو نہیں مانا، نبی کو تکلیف پہنچائی، فَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مومنوں کا راستہ تھا اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپنایا، اللہ وحدہ لا شریک کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی راستے پہ ڈال دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور اسی راستے سے وہ جہنم میں چلا جائے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کی طرف برا ٹھکانہ ہے. ہمارا تو مقصد یہ ہے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ درود سلام پڑھنے کو ہم نے منع کیا. الحمدللہ ارے واجد پوری بات تو ہم نے میں نے کہا جنازے کے ساتھ منع کیا، جنازے کے ساتھ منع کیا. ہاں میں نے کہا جنازے کے ساتھ منع کیا. میں نے کہا یہ بدعت اس کو کہتے ہیں جو نبی کے بولا بتی اور سکین بھیا کا ہاتھ کیا بتی بولا بتی. اب سنو بتی بولا سنو. اچھا ایک چیز اور، قبر میں اعتنامہ لگانا چاہیے یا نہیں، اور قبرستانوں میں چپل اتار کے جانا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں اس کے بعد میں ابھی رکا ہے. اب سب چیز سوال جواب کے لیے ہی ہے. وہ تو جو چیز ہو گئی تھی وہ تو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے. اب سوال جواب کے لیے ہی ہے. انہوں نے جو بات بیان کی، کہا کہ حضور نے فرمایا ہے تو اس لیے جب چاہو تب پڑھو. کہا انہوں نے طاہر بھائی جب چاہے تب جب دل چاہے تب لیکن پڑھو. اس جگہ پر رائج مت کرو کہ آؤ بھائی سب مل کے تم ایسا کام کرو، رائج مت کرو. یہ میں نے کہا کیونکہ یہ اس سے شکل بدل جاتی تھی. مل کے جو ہے ہم سلام پڑھ لیں گے تو ثواب پہنچے گا. تو نبی اتنا اچھا جانتے تھے جو تم نے سکھایا. من نے کیوں کرا نبی نے کیوں نہیں بنایا؟ نہیں نہیں بنا رہے ہوں ہاں. دیکھو سب جگہ یعنی کہ سب جگہ پڑھو لیکن رائج مت کرو. پڑھنا سنو بھائی ادھر دیکھو، سب جگہ سن لے ادھر دیکھو طاہر بھائی، آپ جو ہے جب ہم گفتگو کرا کریں وہ بھی سنیں آپ، ٹھیک ہے. کیونکہ سوال قائم کر کے آدمی کو ادھر ادھر دیکھیں جواب ذہن میں نہیں آئے گا. ان النفس لا تتوجہ الى جہتین فی وقت واحدہ. مائنڈ جو ہے ایک وقت میں ایک ہی جگہ لگ سکتا ہے، دو جگہ نہیں لگ سکتا. اس لیے ادھر ادھر نہ دیکھ کے ہماری سنا کریں. انہوں نے جو بیان کیا کہ اکٹھے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں کہ حضور نے منع کیا ہو کہ اکٹھے ہو کے مت پڑھو، اللہ پاک نے منع کیا ہو کہ اکٹھے ہو کے مت پڑھو. ہاں ہم بتائیں گے کہ اللہ کے اسی حکم سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اکٹھے ہو کے پڑھ لینا چاہیے. کیوں؟ وہ دیکھیں آپ. اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین. الذین کائے کا صیغہ ہے اور کس لیے بولا جاتا ہے ذرا بتائیے. الذین کس لیے بولا جاتا ہے؟ اس لیے بولا جاتا ہے. میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. سب لوگوں سے کہا کہ سب لوگوں سے کہا پڑھا کرو. ہاں سنو کیا ٹھیک؟ سب لوگوں سے سب لوگوں سے کہا پڑھا سب کرو. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب کا مطلب ہوتا ہے ہاں الذین. سب کا مطلب ہوتا ہے سب لوگ پڑھیں، یعنی ٹھیک ہے. سب ایک تو بولا جائے گا کہ یہ ایک چاچا جو ہیں سب ہیں، ہو جائے گا؟ یہ نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ سب پڑھیں اپنے اپنے حساب سے. یہ جماعت جو ہے اس کو ملا کر کے ہوگا سب، یعنی سب مل کر پڑھو. اب دیکھو ان کیا نہیں ہے مل کے اگر یہ دکھا دے کہیں حدیث میں کہ مل کے پڑھو. ان اللہ نماز جنازہ والی ایک بات تو ہاں ایک بات تو پوری ہو جان دو. سنو عربی جو ہے عربی فصحا عربی جو ہے، سنو بھائی ایک ایک کر کے سب بات ہوگی. عربی جو ہے عربی یہ گرامر کے اعتبار سے سمجھی جاتی ہے. گرامر کے اعتبار سے یہ نہیں کہ فصحا عربی ہے قرآن و حدیث کی، اور ایک دوسری ہے جو وہاں پر جو اونٹ چرانے جاتے ہیں اور وہ چرنے جاتے ہیں، وہ عامیہ کہتے ہیں اس کو. حضرت جو آپ بتا نہیں پا رہے تھے عامیہ کہتے ہیں اسے. وہ زبان عامیہ ہوتی ہے یعنی دیہاتی زبان، بدو عربی لوگوں کی زبان دیہاتی جیسے کہتے ہیں. تو قرآن کو دیہاتی زبان سے نہیں سمجھا جائے گا، قرآن و حدیث کو گرامر کے اعتبار سے، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق گرامر بھی اسی کی موافقت کرتا ہے. اور کبھی اگر گرامر میں کوئی سمجھنے میں وہ ہو تو گرامر کی غلطی ہو سکتی ہے، قرآن و حدیث میں ایسا غلطی نہیں ہوگی. قرآن میں غلطی نہیں ہوگی، حدیث میں نہیں ہوگی. اب دیکھیں ایک منٹ، ہمارے حضور کو علم غیب، ارے بات ابھی چل رہی ہے، وہ پہلے ہو گئی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یہ ملائکہ کیا ہے؟ ملائکہ یہ ملک نہیں ہے اس میں کہ ایک فرشتہ، ملائکہ یعنی بہت سارے فرشتے. اب آپ بتائیے ادھر دیکھیے آپ،
आप बताएं कि फरिश्ते जानते हैं आप कितने हैं? गिरोह दर गिरोह फरिश्ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक फरिश्ता है मोहम्मदपुर में, दूसरा है अटामांडा स्टेशन पे, तीसरा है रिचा, बल्कि फरिश्ते तो इतने हैं कि गिरोह दर गिरोह होते हैं। अब अल्लाह पाक फरमा रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहू, यानी बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं। अब आप ये साबित कीजिए कि इस हुक्म के मुताबिक यह है कि अलग अलग फरिश्ता भेजता है, अलग अलग भेजते हैं, लेकिन जहां पर इज्तिमाइयत हो जाए वहां पर सब मिलके भेजेंगे या नहीं? बिल्कुल मैं जवाब दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदीस पाक में आया है 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं और 70,000 शाम को हाजिर होते हैं। अब ये बताइए 70,000 एक है या बहुत सारे हुए? अकेले हुए या जमात हुई? अकेले हुए या मिलकर पढ़ रहे हैं? और हुजूर की बारगाह में, और हुजूर की बारगाह का यहाँ तक कितना है आप देख लो, 70,000 अगर खड़े होंगे तो भीड़ लगेगी नहीं लगेगी? इज्तिमा होगा या नहीं होगा? 70,000 सुन तो रहे हैं। जिन्नात वहाँ पे जब पढ़ते हैं तो वो फरिश्ते पढ़ते हैं, तो ये बता दो कि वहाँ पर जब जो उम्रा करने या हज करने आते हैं अगर ये सलाम पेश करते हैं तो इनको क्यों नहीं पढ़ना है? वो अलग चीज है। इकट्ठे नहीं पढ़ने देते, अकेले आप घर पढ़े, कोई मना नहीं अब करता। देखो कुरान ये नहीं कह रहा है, इकट्ठे नहीं पढ़ने अब देते। देखो ये कह रहे हैं इकट्ठे नहीं पढ़ने देते हैं, ये रह क्या है? अब कुरान, अभी रुको एक मिनट, कुरान ये नहीं कह रहा है इकट्ठे इकट्ठे पढ़ो। कुरान के उसमें कहीं मफहूम में है ही नहीं कि अलग अलग पढ़ो, बल्कि कुरान के उसमें यह है कि बेशक अल्लाह के फरिश्ते दुरूद भेजते हैं, तो ए ईमान वालो सारे के सारे तुम, यानी हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे है। कमाल मुस्तफा जरी तुम भी पढ़ो, मौलाना शहादत साहब तुम भी पढ़ो, मौलाना जावेद साहब तुम भी पढ़ो, तो हमने कह दिया, आप सब क्या सबके लिए कहा। अब सब पढ़े। अब कभी ऐसा हो वो हुक्म अलग अलग हमारे लिए जोखनपुर अटामांडा सबके लिए अलग अलग मुतवज्जे हो गया, लेकिन ये बताइए, और इन्होंने कहा जब दिल करे तब पढ़ो। अब मैं जोखनपुर से आ गया, ये अटामांडा स्टेशन से आ गए, ये रत्ना से आ गए, और आप सब में से आगे जमा हो गए नहीं हो गए? अब बताइए हुक्म हर एक की तरफ मुतवज्जे अलग अलग है, एक सब पढ़ो, जोखनपुर बरेली गिरधरपुर और देहली वाले सब पढ़ो, और सब हो गए एक जगह जमा, यहाँ पर 20 लोग। अब बताइए हुक्म अभी भी मुतवज्जे है या नहीं है? हुक्म मुतवज्जे है या नहीं? और हुक्म मुतवज्जे है तो अब आप पढ़ोगे तो कुरान के मुताबिक पढ़ोगे या कुरान के खिलाफ पढ़ोगे? मुताबिक पढ़ोगे। बताओ भाई, आप कुरान के खिलाफ तो नहीं पढ़ रहे, कुरान के मुताबिक पढ़ रहे, तो पता लगा तन्हा दुरूद और सलाम भेजना भी ये भी दुरुस्त है, और इज्तिमाइयत के साथ इकट्ठा होकर भेजना भी दुरुस्त है। और हदीस से साबित है कि 70,000 फरिश्ते सुबह को हाजिर होते हैं, 70,000 शाम को हाजिर होते हैं, और सब हुजूर की बारगाह में दुरूद भेजते हैं। और इतना अफजल है ये काम कि जिसको एक मरतबा एक फरिश्ते को मौका मिल गया, कयामत तक दोबारा उस फरिश्ते को मौका नहीं मिलेगा। इतने फरिश्ते अल्लाह ने क्यों पैदा फरमाए? जो हिकमतें हैं उनमें एक हिकमत ये भी है ताकि कसरत से मेरे हबीब पर ये फरिश्ते दुरूद और सलाम भेज लें। एक एतराज सुने, अब एतराज क्या? मैंने भी आपसे कहा, जैसा शेख ने बताया, मैंने भी कहा कि भाई सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं। एतराज ये है कि जिस आयत का मफहूम हजरत ने बताया कि इस आयत से ये दलील पकड़ी है कि सब पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आयत से दलील पकड़ी उन्होंने कि सब पढ़ सकते हैं और जमा होकर पढ़ सकते हैं। ये आयत जो हजरत की समझ में आई, ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझ में नहीं आई, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझ में नहीं आई, ये उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझ में नहीं आई, किसी सहाबी की समझ में नहीं आई, ये इनकी समझ में 1400 साल के बाद आई। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर उनकी समझ में यही मफहूम आया होता जो हजरत ने जो मफहूम बताया है, तो वो सब मिलकर पढ़ते जनाजे के साथ। पढ़ते या नहीं पढ़ते? बताओ, बोलो बोलो। अब खामोश रहने की जरूरत नहीं, सब पढ़ते नहीं पढ़ते। लेकिन अगर अरे जबरदस्ती आप जबरदस्ती अब अगर है, अब कहीं पढ़ा है, अगर कहीं पढ़ा है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, तो वो हमको दिखा दो, अल्लाह की कसम है चीख चीख कर पढ़ेंगे। मैंने कोई गलत बात कही? चीख कर पढ़ने कोई गलत बात कही? अरे तो ये चीख के तो पढ़ते जा रहे थे और कैसे पढ़ रहे थे? ये हदीस बात मैंने सुनाई है, मैंने कोई गलत बात कही? दिखा दो कहीं हुक्म हो तो। कहीं नहीं है, पूरे सुबह से शाम तक सारी जिंदगी ये दिखा नहीं सकते। अब हम बता रहे हैं, चलो सुनो। अब आप देखो, ये जो हदीस पाक मैंने पढ़ी 70,000 फरिश्ते वाली, ये हुजूर का फरमान है ना? अरे सुनो, हुजूर का फरमान है नहीं, इकट्ठे इकट्ठे नहीं है, सबका सबके तुम 1 करोड़ पढ़ो, लेकिन सब अपनी 70,000 फरिश्ते जो 70,000 फरिश्ते अबू बकर को समझ में नहीं आता, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब 1400 साल के बाद तुम्हारी समझ में। अरे भाई तस्लीम भाई तवज्जो करो, सुने हजरत की बात सुने, मैं एतराज करूंगा तुम्हारे सामने। सुने हजरत की बात सुने और एतराज जो पूरी हो जाए चल रही है।
70,000 फरिश्ते, सुनो, अरे एक बात तो 70,000 फरिश्ते सुबह को पढ़ते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को पढ़ते हैं। ठीक है? अरे भाई इधर आप अरे बात इधर हो रही तस्लीम भाई यार, है भी तस्लीम भाई, अरे बात इधर सुनो ना, जाते हैं आप खामोश हो। पहले एक बात सुनो, बात घुमाओ मैं 70,000 फरिश्ते सुबह को पढ़ते हैं, 70,000 शाम को पढ़ते हैं। ये क्या है? हदीस। ये क्या है? हदीस। बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। हुजूर का फरमान है। कब फरमाया हुजूर ने? 14 साल बाद, 1400 साल बाद मुझे कह रहे हैं कि आज बता रहे हैं। आज हुजूर ने आज बताया या 14.5 साल पहले बताया? कब बताया? हुजूर ने बताया, मैं भी तो बता रहा हूँ, मुझे बोलने कि दो। सबने पढ़ा। मुझे बोलने ठीक है दो। ना? हाँ। ये 70,000 फरिश्ते हुजूर की जालियों पर, हुजूर के रोजे पर हाजिर होकर पढ़ते हैं। बिल्कुल पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जमा हुए 70,000 के लिए इज्तिमाइयत चाहिए नहीं चाहिए? ये सब बात जहन में आने वाली है। अब ये बताइए, ये बात मैं आज अपनी तरफ से कह रहा हूँ या हुजूर की हदीस कोट कर रहा हूँ? बताइए। हदीस कोट हदीस करी, कोट लेकिन कर रहा हूँ, इकट्ठे एक लेकिन साथ अब सुनो एक आवाज बात में सुनो, पढ़ने अरे की बात